Hello everyone, once again welcome back to my channel. In today's video I'll discuss about the first chapter of class 12 geography book, that is practical book, and the chapter name is data, its source and compilation. Here I'll discuss about what is data, sources of data, primary and secondary sources of data, and why do we need data, and presentation of data. So let us get started. So first paragraph which is visible on a screen is, here it is shown that how we see data in our daily lives and how we have seen till now data. So first example is given of a news channel in which after every news a map is displayed of India, in which temperature of each state is recorded and as well as of important cities also. And the second example is given of a geography book, that is second geography book in which all the content is related to India. Name is India, People and Economics, in which we have seen population growth, migration, density of population, everything, and that is what it is, data. So the first heading which is most important is what is data. Actually what is data? So data is something that represent measurement from real world. यानी कि जो हम आम बोलचाल की भाषा में जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो ना यूज़ करके न्यूमेरिक वैल्यू में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना ही डेटा है. अगर हम कहें कि हमने एवरेज मार्क्स स्कोर किए हैं जियोग्राफी के टेस्ट में, तो ये क्या है, हमारी आम बोलचाल की भाषा, और ये है क्वालिटेटिव. अगर मेरे को क्वांटिटेटिव में रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, डेटा. अगर हम कह दें कि हमने 70% मार्क्स स्कोर किए हैं ज्योग्राफी के टेस्ट में, देन इट इज़ व्हाट, डेटा. सो हम कह सकते हैं डेटा कैन बी सेड एज रिप्रेजेंटेशन समथिंग दैट रिप्रेजेंट मेजरमेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. और ये क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, दैट 35 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन दिस इन you can, for example, you can say 35 centimeter of rainfall in Uttar Pradesh, okay, and you can say that 2 hours from your village 2 hours took to reach the हरदोई. यानी कि आपके घर से 2 घंटे लगते हैं हरदोई जाने में अगर आप पैदल जाएंगे, और अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको 1 घंटा लगता है, अगर आप बस से जाएंगे तो आपको इतने घंटे लगते हैं, अगर आप साइकिल से जाएंगे, बाइक से जाएंगे तो आपको इतने घंटे लगते हैं. अगर इन सभी चीज़ों को हम कहीं रिप्रेजेंट करें टेबल के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू के तहत, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेटा. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं. और यहाँ पे कुछ दिया गया है इन्फॉर्मेशन के बारे में. इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सिंपल इन्फॉर्मेशन. अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप उसका आंसर देते हो और जो आप आंसर देते हो वही इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आगे और क्वेश्चन को भी जनरेट कर सकती है. और सिंपल वे में अगर हम कहें, इन्फॉर्मेशन इज आंसर टू अ क्वेश्चन आस्क्ड, और इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू मोर क्वेश्चंस. Information is an answer to a question and that can lead to further questions. ठीक है. And the second heading which is there is need of data. What is need of data and how the data is important? So data is important in our daily lives. 2 forms of data are given in this heading. First is map. What are maps? You have already seen. Maps are so important that they are asked in almost every geography exam. You have seen that 10 marks map is asked in your exam. So first form by which we can express data in geography is map, and the second is tabular presentation of data. Before discussing what is tabular presentation of data, we must discuss what is table. Table is combination of rows and columns. Table rows and columns का combination क्या है. अब rows and columns क्या है वो further एक heading है table वाली, उसमें हम discuss करेंगे. तो हम पहले तो डेटा मैप पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकेंड टेबल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जो टेबल पे डेटा रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है और टाइम को सेव करता है. हम डेटा को क्यों डेटा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, एक थ्योरेटिकल एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको आप ज़्यादा इजी से समझ सकते हैं, या फिर अगर आपके एक टेबल के फॉर्म में अलग अलग रोज एंड कॉलम्स में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको सही से समझ सकते हैं, जल्दी से समझ सकते हैं, एक्यूरेट होती है और टाइम को सेव करती है. इसीलिए हम डेटा हमारे लिए इतना ज़रूरी है. और यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए गए हैं. पहला दिया गया है, अगर आपको किसी
एरिया के बारे में, किसी क्रॉपिंग एरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी होगी, तो आपको क्या जानना होगा, इरिगेशन कितना हुआ है, कितनी रेनफॉल होती है, क्या क्या फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, कितने इंसेक्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, कितने पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, वो सब आपको जानना होगा। तो अगर आप उसको एक पैराग्राफ में एक थ्योरेटिकल वे में लिख देंगे और ना उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ना ही कोई उसमें एक्यूरेट सॉलिड प्रूफ होगा, तो क्या वो डाटा अच्छा होगा, क्या वो डाटा एक्यूरेट होगा? नहीं। अगर हम उसी को एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे कि कितना रेनफॉल हुआ है उस एरिया में, कितने फर्टिलाइजर्स यूज़ हुए हैं उस क्रॉप्ड एरिया में, क्या क्या इंसेक्टिसाइड्स, किस टाइप के इंसेक्टिसाइड्स यूज़ हुए हैं, अगर उसको हम एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, एक्यूरेट होगा हमारा। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल दिया गया है हमारा रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने में हमको किन चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो डेंसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज़, सैलरीज़, यानी कि अगर आपको अपने एरिया की कितनी पॉपुलेशन है, क्या है, तो आपको जानना होगा कि कितने माइग्रेंट्स हैं। अगर आपको इंडस्ट्रीज़ कितनी है आपके एरिया में, तो वो सब जानना होगा। और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कैसा है, वो सब भी आपको अपने एरिया का जानना होगा। तो अगर आपके एरिया में 15 इंडस्ट्रीज़ है, तो उसको अगर हम टेबल के फॉर्म में आराम से रोज़ इन कॉलम में उसको एक्सप्रेस करें, उसको लिखें, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। कितने माइग्रेंट्स कहाँ से कहाँ गए हैं, उसको रोज़ इन कॉलम के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। किस सेक्टर में लेबर्स की सैलरी कितनी है, अगर उसको हम एक एक्यूरेट न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में एक्सप्रेस करें, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और तीसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब डेटा क्या होता है, क्यों ज़रूर होता है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेटा को प्रेजेंट कैसे करें। जब तक आपको डेटा को प्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन ही नहीं आता होगा, तब तक क्या फ़ायदा है जानने कि डेटा होता क्या है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है एक मैन की, जो कि अपनी वाइफ और अपने 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड के साथ ट्रैवल कर रहा होता है। उसको एक नदी को क्रॉस करना होता है, जिसकी एवरेज डेप्थ होती है 0.95। तो ऑलमोस्ट मैन वुमेन की तो हाइट 5 या 5 अबव ही होगी, पर उसकी चाइल्ड की 5 ईयर चाइल्ड की जो एवरेज हाइट थी वो कितनी थी, 1 मीटर। तो अपने जो मैन था उसने नदी में पैर आगे बढ़ाया और देखा एक जगह पे जो डेप्थ रिकॉर्डेड थी वो 0.6 थी, एक जगह पे 0.8 थी, और एक जगह पे 0.9 थी, एंड एक जगह पे 1.5 थी। उसने पूरी एवरेज डेप्थ को कैलकुलेट किया, तो वो आई थी 1.5 मीटर, वो आई थी 0.95 मीटर। तो उसकी चाइल्ड की क्या थी, हाइट 1 मीटर। तो उसने कहा कि हमारा बच्चा भी आराम से नदी को पार कर सकता है, क्योंकि उसकी तो 1 मीटर है और जो डेप्थ है वो तो 0.95 मीटर ही है। तो उसने अपने बच्चे को भी अपने साथ आगे जाने के लिए कहा। तो वो लोग तो आगे चले गए। अब वो रिवर की दूसरी साइड पे गए, उन्होंने देखा कि उनका बच्चा डूब गया। तो जो मैन था उसने रिवर की नेक्स्ट साइड पे बैठ के बोला, लेखा जोखा था है तो बच्चा डूबा का है। यानी कि जो हमने गणित लगाई थी वो तो बिल्कुल सही थी, फिर हमारा बच्चा डूब कैसे गया। यही जो था, इसी से हम समझते हैं कि डेटा का एक्यूरेट होना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होना कितना इम्पॉर्टेंट है। आपने पढ़ा है कि ह्यूमन्स कैन मेक मिस्टेक्स बट कंप्यूटर नॉट। इसी वजह से डेटा के कैलकुलेशन में ह्यूमन्स की जगह कंप्यूटर को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि किसी फील्ड में मैन से ज़्यादा कंप्यूटर को यूज़ होता है, इसी वजह से, क्योंकि वो एक्यूरेट डेटा एनालिसिस को प्रोवाइड करता है। तो डाटा के कलेक्ट करने से ऑर्गेनाइज करने तक, उसका पूरा कंक्लूज़न निकालने तक हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कंपाइल की जाती है, उसको टैबुलर प्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये सब हमारे पास होता है। तो फिर हेडिंग आपके पास है सोर्सेस ऑफ डेटा, यानी कि हम कहाँ से डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी बुक में 2 सोर्सेज दिए गए हैं, पहला है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है, डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम आइदर बाय इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। जो फर्स्ट टाइम डेटा कैलकुलेट किए जाते हैं, ओरिजिनल डेटा होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा। और जो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा में 2 तरीके के होते हैं, पहला होता है पब्लिश सोर्सेज एंड दूसरा होता है अनपब्लिश सोर्सेज। उसमें भी अलग अलग टाइप से वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, जो हम पहले से ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, उससे अगर हम डेटा कैलकुलेट करते हैं, उससे हेल्प लेके डेटा को, अपने सर्वे को कंडक्ट करते हैं, तो वो हमारा होता है सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा।
तो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा में आप पहला है आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन पर्सनली गोज टू एन रिस्पोंडेंट एंड आस्क क्वेश्चंस एंड कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन। इसमें जो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जाता है वो सर्वे करता है और पर्सनली क्वेश्चंस पूछता है, उनका आंसर लेता है और अपना सर्वे को कंडक्ट करता है। इसमें कौन कौन से डेटा कैलकुलेट किए जा सकते हैं, जैसे कि लिटरेसी रेट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ रूरल अर्बन सेटलमेंट, इससे रिलेटेड हमारे डेटा कैलकुलेट किए जा सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे जो याद रखने वाली होती है वो होती है कि जो डेटा कलेक्ट कर रहा है आदमी, उसको ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे याद रखना पड़ेगा, यानी कि उसको अपने जिस सब्जेक्ट में वो डेटा को कैलकुलेट कर रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में उसको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। और सेकंड है यहाँ पे इंटरव्यू आपने टर्म हर जगह सुना होगा, बट एक्चुअली इंटरव्यू होता क्या है। इसमें जो डायलॉग्स एंड कन्वर्सेशन के माध्यम से सारा का सारा डेटा कैलकुलेट किया जाता है। आपके सामने एक आपका रिस्पॉन्डेंट होगा जिससे आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर देगा, आप उससे उस इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको याद रखने हैं इंटरव्यू लेते टाइम। तो सारे पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमको इम्पॉर्टेंट लगते हैं पॉइंट्स वो आपको बता रहे हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने है, आप किस किस बारे में डेटा को कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन एक पेज पे लिखनी होगी, कि आपको अपने रिस्पोंडेंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं वो आप अगर एक पेज पे लिख लेंगे और आपके सामने रिस्पोंडेंट होगा, आपसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, वो आंसर करता जाएगा। इससे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। सेकेंड है कि आपको जो इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव है वो आपको अपने दिमाग में पहले से ही रख लेना, उसको समझा देना है, जिससे आप जो आपका सामने वाला आंसर करने वाला है। और सेकेंड है कि थर्ड है कि आपको एक ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा जिससे जो रिस्पोंडेंट है वो फ्री हो जाए और आपको सारी की सारी ट्रू इन्फॉर्मेशन दे दे और बिल्कुल भी हेजिटेशन उसको ना फील हो, ठीक है। और फोर क्या होगा, जो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए वो वही लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपका रिस्पोंडेंट ईजिली समझ सकता हो। अगर आप वही लैंग्वेज में उससे क्वेश्चन पूछिए जिस लैंग्वेज में वो आपको आंसर दे सकता है, ठीक। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और आपका बिहेवियर पोलाइट होना चाहिए। और फिफ्थ हम क्या कह सकते हैं, आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए जिससे उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म पहुँचे या फिर उसके रिलीजियस फीलिंग को हर्ट हो। अगर आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है फिर आप कह सकते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए थैंक यू। अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड, तो आप वो भी हमको दे सकते हैं, ठीक। और जो लास्ट में आपको उसको थैंक यू बोलना होगा और उसको थैंक करना होगा कि आपका अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। ये हमें पॉइंट्स याद रखने होंगे किसी से इंटरव्यू लेते टाइम। तो हमारे 2 फॉर्म्स ऑफ डेटा जो कि हमारे प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं कंप्लीट हो गया। थर्ड है क्वेश्चनायर शेड्यूल लगभग एक ही है, बस में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्वेश्चनायर क्या होता है, एक पेपर पे हम अपने क्वेश्चंस लिख लेते हैं जिनके नीचे ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें सामने वाले को क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। तो वो अपने क्वेश्चन के आंसर उसमें नीचे लिख देता है। ये डायरेक्टली जाके भी हम किसी को पेपर दे सकते हैं, वो आंसर लिख देगा, और मेल भी किए जा सकते हैं। हम मेल कर देंगे, वो अपने आंसर उसमें फिल करके हमको दोबारा वापस कर देगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक। और ये इसके ड्रॉबैक क्या है, बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ड्रॉबैक ऑफ क्वेश्चनायर। तो इसमें ड्रॉबैक क्या है, लिटरेट लोगों के काम ही आता है, इलिटरेट लोगों के काम नहीं आता है। जो पढ़ा लिखा होगा वही तो उसमें आंसर फिल कर पाएगा, अनपढ़ को जब लिखना ही नहीं आता होगा वो कैसे उसमें आंसर फिल करेगा, ठीक है। इसका ड्रॉबैक पूछा जाता है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। और फिर क्या है, शेड्यूल भी क्वेश्चनायर के तरीके से ही होता है। उसमें भी आपको क्वेश्चन लिख देंगे, उसके नीचे ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आंसर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसमें रिस्पोंडेंट आंसर नहीं लिखेगा, रिस्पोंडेंट से आप क्वेश्चन पूछेंगे, उस बेसिस पे आपको खुद आंसर लिखना होगा। आप गए किसी से, आपने पूछा कि आपके विलेज में कितने हैंडपम्प हैं, तो वो बताएगा कि हमारे विलेज में इतने हैंडपम्प हैं, यहाँ पे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन वो देगा। पर आप उस इन्फॉर्मेशन को लिखना पेपर पे किससे होगा, आपको लिखना होगा, अपने मन से नहीं लिखना होगा। जो इन्फॉर्मेशन वो देगा रिस्पोंडेंट, उसके बेसिस पे आपको आंसर्स लिखने होंगे। आंसर्स यस नो वाले भी हो सकते हैं या फिर थ्योरेटिकल बेस्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा हमारे यहाँ पे क्वेश्चनायर शेड्यूल भी कंप्लीट होता है। डिफरेंस इसमें बहुत पूछा जाता है कि क्वेश्चनायर और शेड्यूल में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला होता है कि
both in this a list of questions is prepared on and blank space is provided in which the question are to be answered, but in questionnaire respondent himself writes the answer of the question, but in schedule the person who is asking the question on the behalf of information provided by the respondent answers the question. A second important point क्या है, questionnaire is not helpful for illiterate person, but schedule is also helpful for illiterate person. And the third option is questionnaires can be submitted through email, but schedules cannot be submitted through emails. आपको सामने जाकर ही उससे इन्फॉर्मेशन लेनी होगी और इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे अपने आंसर्स उसमें लिखने होंगे. ठीक, अब हम आते हैं अदर मेथड पे. अदर मेथड में आपको डायरेक्टली जाके उसमें ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को और सर्वे को कंडक्ट करना पड़ता है. जैसे आपको अगर सॉइल की क्वालिटी के बारे में जानना होगा, आप अपनी सॉइल किट लेके जाएंगे, वहाँ पे सॉइल को ऑब्ज़र्व करेंगे, कौन कौन से मिनरल्स हैं सॉइल में, क्या क्या सॉइल लैक करती है, फिर आप अपना डेटा को कैलकुलेट करेंगे, आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे. आपको वाटर एक एरिया के वाटर के बारे में जानना है कि वाटर सॉल्टी है या नहीं है, वाटर का क्या फॉर्म है, तो आप जाएंगे वहाँ पे अपनी वाटर वाली किट लेके जाएंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे सब कुछ, फिर अपना जो को ऑब्जर्वेशंस होंगे वो आप रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, फिर हम आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा पे. हमने पहले ही बताया सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा क्या है, जो पब्लिश और अनपब्लिश दोनों हो सकती है. यानी कि जो पहले से इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं और जो हम लिखते हैं, वही है हमारा सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा. तो पहला तो इसमें है पब्लिश सोर्सेज. पब्लिश सोर्सेज में क्या है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन. गवर्नमेंट पब्लिकेशन में क्या आ जाता है, जैसे हमारी एजुकेशनल मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, वो जो हमारे अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड डेटा को पब्लिश करते हैं, लोगों को देते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है अपने लोकल लेवल के सर्वे कंडक्ट करने में. अगर हमको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी डाटा चाहिए कि कितने लोग बीमार पड़े, कौन कौन सी डिजीज़ेस हुई, किस किस डिजीज़ में कौन कौन लोग बीमार पड़े, तो वो कहाँ से अगर जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने पहले ही हर ईयर का डाटा पब्लिश किया हुआ है, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपनी लोकल लेवल सर्वे में, वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन्स होते हैं वो अपना डेटा पब्लिश करते रहते हैं टाइम टू टाइम, अलग अलग मिनिस्ट्री से रिलेटेड. और ये हमारा जो सैम्पल सर्वे होता है आफ्टर एवरी 10 ईयर, वो भी अपना हर फील्ड से रिलेटेड डेटा को पब्लिश करता रहता है. SDI हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सब कुछ से रिलेटेड अपना डेटा पब्लिश करते रहता है. वो डेटा हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है लोकल लेवल सर्वे को कंडक्ट करने में. ठीक, फिर आता है हमारा सेमी क्वासी गवर्नमेंट पब्लिकेशन. ना ही जो पूरा गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है और ना ही पूरा प्राइवेट पब्लिकेशन है, यानी कि सेमी है. तो इसमें क्या आ जाता है, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो अपना डेटा को पब्लिश करते हैं, एक्यूरेट हो या ना हो, पर वो जो डेटा को पब्लिश करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल होता है अपने सर्वेज़ को कंडक्ट करने में. अगर हम डायरेक्टली जाके वहाँ पर टाइम कम है और हम डायरेक्टली जाके नहीं पूछ पा रहे कि एक इंसान से एक एक विलेज में जाके, एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक लोकेलिटी में जाके नहीं पूछ पा रहे हैं, तो हमारे पास जो पहले से डाटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं. तीसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हमारा आ जाता है यूनेस्को, UNDP, WHO, FAO एक्सेट्रा. यानी कि हमारा इसमें आ जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UNDP आ जाता है, WHO आ जाता है एक्सेट्रा. अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी हमको इंटरनेशनल लेवल का डाटा लेना है तो वो कहाँ से लेंगे, WHO से लेंगे. WHO भी अपना टाइम टू टाइम हेल्थ लेवल का स्टेटस अपडेट करता रहता है. UNDP भी है, वो भी अपना अपडेट करता रहता है. और जो FAO है, यानी कि कहाँ से कौन से ग्रेन्स, कहाँ से कौन सा फूड किस कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है, वो भी अपना डाटा पब्लिश करता रहता है. किस कंट्री में भुखमरी है, वो भी अपना डेटा पब्लिश करता रहता है. तो वो डेटा एट इंटरनेशनल लेवल हमारे लिए हेल्पफुल होता है लोकल लेवल पे. यानी कि इंटरनेशनल लेवल से हम इंफॉर्मेशन लेके अपने लोकल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं. वो ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है,
फिर आता है प्राइवेट पब्लिकेशन। प्राइवेट पब्लिकेशन में हमारी आ जाती है ईयर बुक, सर्वेज, रिसर्च रिपोर्ट्स, मोनोग्राफ पब्लिश बाय न्यूज़पेपर एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ईयर बुक तो आपको पता है क्या होती है, जो बुक आती है पूरे ईयर का डेटा को प्रोवाइड करती है, वो होती है हमारे ईयर बुक। सर्वेज जो लोकल लेवल पे हमारे कंडक्ट होते हैं या फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कंडक्ट होके जो लोकल लेवल पे या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमारे कंडक्ट किए जाते हैं, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स, मोनोग्राफ्स क्या होता है, किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो वो होता है हमारा मोनोग्राफ। वो कहाँ आते हैं, प्राइवेट पब्लिकेशन में, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। न्यूज़पेपर मैगजीन्स आप डेली पढ़ते हो, डेली की डेली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, पर फोर्टनाइटली मैगजीन्स होती है, मंथली मैगजीन्स होती है, डेली मैगजीन्स होती है, वीकली मैगजीन्स होती है। वो भी हमारे डे का अपडेट जो होता है वो डेली मैगजीन्स में प्रोवाइड होता है, मंथ का पूरा अपडेट होता है वो मंथली मैगजीन में प्रोवाइड होता है, फोर्टनाइट का अपडेट होता है वो हमारा फोर्टनाइटली मैगजीन्स में प्रोवाइड होता है। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कि सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है वो है इंटरनेट। इंटरनेट हमारा हर 2 घंटे अपडेट होता रहता है, उसमें हर चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हर सर्वे हर चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम कहीं से भी गैदर कर सकते हैं, ठीक। फिर आता है अनपब्लिश सोर्सेज। हमने क्या बताया था, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा में पब्लिश्ड होता है और अनपब्लिश्ड होता है। तो पब्लिश में हमने पढ़ा गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी क्वासी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। फिर हम आते हैं अनपब्लिश सोर्सेज ऑफ डेटा। इसमें आता है हमारा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। हम आप कहेंगे गवर्नमेंट पब्लिकेशन पहले भी हो गया, फिर से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो जो गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दी है, लोगों को दिखा दी है। पर इसमें क्या आता है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में जो लोकल लेवल पे, जैसे विलेज के पटवारी जो अपना रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जिसमें अपना क्या क्या हमारे विलेज में डेवलपमेंट हुआ है 5 साल में, उसका पूरा अपना ब्यौरा लिखते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर हम किसी विलेज की कोई भी इन्फॉर्मेशन को नीड करते हैं। वहाँ जाके पटवारी से रजिस्टर लेके जो हमको इन्फॉर्मेशन ज़रूरत होती है वो ले सकते हैं। वो पब्लिश नहीं होता है, वो लोकल लेवल पे रहता है, पर कहीं पब्लिश नहीं होता, आप कहीं उसे देख नहीं पाएंगे, ठीक है। और फिर आता है हमारा क्वासी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, periodical reports and the development plans prepared by the and maintained by the different municipal corporation, district council, civil servant। अब सिविल सर्वेंट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और क्वासी गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो अपना लोकल लेवल पे बनाया करते हैं, अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने एरिया से रिलेटेड, अगर हमको उस एरिया से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर हमको हरदोई के किसी एक टाउन से रिलेटेड या किसी एक लोकेलिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ पे कुछ हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि अपना डाटा पहले से ही प्रिपेयर होता है उनके पास, वहाँ उनसे जाकर उनसे पूछकर हम वो इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। एक्यूरेट हो या ना हो वो अलग डिपेंड करता है। फिर हमारे पास आता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट। दीज इंक्लूड अनपब्लिश्ड reports and records of companies, trade union, different political and apolitical organization and resident welfare organization। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो कि ट्रेड यूनियन कंपनीज़ के जो डेटा होते हैं जो पब्लिश नहीं होते, अनपब्लिश्ड रहते हैं। अब अनपब्लिश्ड रिपोर्ट होती कि इस ट्रेड यूनियन ने ये किया, इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इतने सालों में ये किया, वो पब्लिश नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रहता है। उस वहाँ जाकर हम उसे पूछ कर उस फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, और जो हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं उसमें वो हेल्पफुल हो सकते हैं।